All right, everybody. Good point and a good news. My internet is finally back fine, and there was guess what happened? My router, पता नहीं उसमें कोई मसला हो गया था, and because of that, we had no internet access, and I had to take those class on data. But now back to where we were, and so let's start off officially with today's class, a new week, and best of luck for everyone who will be having their results tomorrow. Inshallah, you all are going to do super duper well. बिल्कुल किसी ने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो एंड सब अच्छा होगा. कोई थ्रेशोल्ड्स कोई नहीं, बस इजी सीन है. डोंट वरी, इजी सीन है. सही है, बिल्कुल इजी सीन है. बस स्टे काम, बस अल्लाह को याद करते जाओ. सही है. एंड यस रेहान, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख लूँ तो फिर ज्यादा बेहतर होगा. एक सेकंड. तो यस रेहान, आप पूछ लो. टिल देन, just to give you guys a quick idea, do you have any? Yeah, thresholds are uploaded on Cambridge official website, but those thresholds are uploaded usually a bit late. What I will recommend is that आप लोग ऐसे करो, on your Instagram, go follow Mathlete by Saad. You might have heard the name too, Sir Saad Salim, one of the best maths teacher out there. Mathlete by Saad posts all these thresholds for all the subjects around 7 to 8. Yeah, it's weird. मैं लिंक शेयर कर देता हूँ उनकी इंस्टाग्राम हैंडल की. आप वो कर लें मैथलीट की. तो वो ये करते हैं कि वो सारा का सारा ना, लाइक यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि वो सारा थ्रेशोल्ड खुद ही अपलोड करने लग जाते हैं अराउंड 7-7:30, जब भी आप लोग उठे रिजल्ट लेने के लिए. तो आप देख लें वहां पे, या फिर आप लोग अगर फेसबुक के ऊपर देयर इज दिस कम्युनिटी नोन एज COALI क्वाली, अगर आप इस कम्युनिटी में यहाँ पे भी हो जाता है फॉर फेसबुक. लेकिन आई विल रिकमेंड हैव अ लुक एट दिस इंस्टाग्राम. सरसाद ऑलवेज अपलोड्स इट, लाइक ASA2 इन्होंने अपलोड किए हुए होते हैं. तो आई गेस ये इसका भी कर देंगे. अगर लेट से नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज सेंड हिम अ मैसेज, एंड इफ यू आर इन एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप, स्टडी ग्रुप्स, तो वहाँ पे भी शेयर हो जाते हैं. So now let's start off with where we left, because we don't have a lot of time, and काफी हम पहले से थोड़ा लेट वाला हिसाब है. So हमने सबसे पहले आज जो स्टार्ट करना है, we have to officially start off with chapter number 3.4. इंशाल्लाह आज चैप्टर नंबर 3 आखिरकार दिस फजूल सा चैप्टर इज गोना एंड. सही है इंशाल्लाह. सो सुपर डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन सुपर लॉन्ग एंड बोरिंग सा टॉपिक. सही है. सो नाउ the very first thing which we are going to be studying in chapter number 3.4 is network interface card. Let me write it up here. Network interface card. Network interface card. अब आप लोग सोचते होंगे कि यार, if I go and buy a laptop, there is this automatic option where I can connect with any internet using Wi-Fi, right? या फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर हम प्लग इन करते हैं. लैपटॉप्स में प्लग इन के ऑप्शन के साथ हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाला हिसाब भी हो जाता है. कभी सोचा है कि वाईफाई हमारे लैपटॉप में, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट व्हिच अलाउज अस टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द इंटरनेट ओवर वाईफाई? Well, that thing is your network interface card. Network interface card is that specific device which allows a specific device. It is that component which allows a device to connect to a network. सही है. तो अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखवाई जाए तो it is the component that allows you to connect, allows a device कर लेते हैं, allows a device to connect to a network. Whenever I use the word network, तो आपको समझ आ जानी चाहिए ये कि internet is also a type of network. सही है. So it might also refer out to some other sort of networks अगर कोई setup किया जाए. लेकिन at this example we take it as the internet. Oh, interwork बोल दिया. I don't know what happened. Internet, my bad. See, internet. By the way, जो हमने फ्राइडे की क्लास की रिकॉर्डिंग पोस्ट की है, I already told you, inshallah on this coming Saturday we will be having a retake class. सही है. So we will be taking the class on what do we call it, Saturday. उसी के लिए रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसके साथ साथ लाइव क्लासेस का हमने फिर से वो भी करना होता है. सही. So now network interface card is that component of your computer that allows a device to connect to a network. Now अगर आपने कंप्यूटर लेना है उसके साथ आप NIC लगवा लें. This is the short form for this network interface card is basically NIC. So N
is network, I is interface and C is card. तो जब आप बाहर जाके अगर आप सोचते हैं कि यार मैंने कंप्यूटर में वाईफाई लगाना है, so what you can do is you can literally go to a computer shop and you can ask that person to give me like an NIC card, and you can like just the way you connect a graphic card, just the way you connect RAMs, तो आप NIC अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर में जब ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद होता ही है कि आपके सारा का सारा एक्सेस मिल जाता है टू नेटवर्क्स, इंटरनेट्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट आपका जो NIC होता है ना, NIC, रिमेंबर हम एक चीज पढ़ते हैं कि यार how does the Wi-Fi get to know, या how does my router get to know कि यार this is a unique PC. like अगर मैं अभी कनेक्ट होता हूँ and I open up my PTCL website, like आप लोगों ने कभी देखा होगा when the PTCL people come to your home, they like open a website 192.168 dot 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 dot, इस तरह के वेबसाइट्स खोलते हैं जिसके ऊपर आपके सारे पोर्टल के रिलेटेड स्टफ होता है, सारा कंटेंट वगैरह चीजें होती हैं. तो आपके राउटर को कैसे पता लगता है कि like my laptop just connected with the internet? There has to be some sort of unique ID of my laptop, right? Which shows that my device is now connected with the others type of, what do we call it, network. So that thing, that specific ID, that specific unique number, which allows a network to know that I have connected with some sort of internet, is basically MAC address. हमने इसको एक दफा पहले भी chapter 1 में पढ़ा था MAC address को थोड़ा सा, if you guys remember. MAC address is that specific, that super specific address that allows your device to be what do we call it, uniquely identified over internet. मैं आपको इसकी exact definition बता देता हूँ कि आपको fully सही तरीके से समझ आ जाए. यहाँ पे कहीं होगी किधर हाँ. So a MAC address is a unique identifier which acts as a network address for a device. तो इसको हम थोड़ा simple अल्फाज में लिख देते हैं जो कि आपका बनेगा, it is MAC address, it is the address that uniquely identifies your device on a network. मतलब on a network, या फिर जब भी आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ, नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड MAC एड्रेस, वो हम डिस्कस करते हैं, सही है, तो हम आगे ही पढ़ेंगे. देयर इज अ डिफरेंस. अब सीन ये है कि जो आपका MAC एड्रेस होता है ना, वो नेटवर्क एड्रेस फॉर अ डिवाइस होता है. मतलब इट इज दैट एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज योर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क. इसका मतलब ये कि यार अगर मैं ये बोलूं कि आई एम करेंटली एट माई होम, दिस इज माई होम, एंड यहाँ पे मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता हूँ, होम वाले नाम से कोई राउटर के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ, तो द राउटर इज गोना गेट टू नो कि लाइक द कोड ऑफ दिस डिवाइस इज मे बी 27C. 27C uniquely identifies my device. This is my fingerprint. सिंपल अल्फाज में बताऊं, this is my fingerprint. और वाले हाँ बिल्कुल अहमद, अभी हम इसको करते हैं, बिल्कुल यू आर करेक्ट. अब ये जो मेरे डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट क्या होता है, लाइक फिंगरप्रिंट इज यूनिक फॉर मी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, राइट. इसीलिए हम फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. इसी तरीके से जो मेरे डिवाइस का फिंगरप्रिंट होता है, दैट इज एंड स्पेशली फॉर डिवाइसेस जो कि इंटरनेट या नेटवर्क्स पे कनेक्ट होती है, वो हमारा होता है मैक एड्रेस. तो जो मेरा मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस दैट इज बेसिकली माय फिंगरप्रिंट. एंड सो इफ आई गो टू लेट्स से अहमद होम, अहमद के घर में जाता हूं and I connect with the internet again. So my MAC address, the MAC address will still be 27C. So 27C जब भी मैं अपने इस लैपटॉप को लेके दुनिया के किसी कोने में भी चला जाऊं, whenever I connect with an internet, that unique thingy that identifies my device on that network is basically known as the MAC address. So it is that address that uniquely identifies. Why does it do it uniquely? Because दुनिया में और कोई कंप्यूटर है ही नहीं जिसका मेरे जैसे MAC address होगा. It is basically, इसको हम अभी पढ़ते हैं कि MAC address ये uniqueness achieve कैसे करते हैं, that is a different story. अभी हम उसी की तरफ ही जा रहे हैं. लेकिन अब MAC address होता किस तरह है? MAC address का काम ये होता है ना कि हमको बता दिया कि मतलब आपके यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. आपके जहन में होगा मैक एड्रेस यार इशू कौन करता है? इट इज बेसिकली इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर. सो इफ आई लेट्स से वर्क एट HP is the company which makes laptops, right? So if I'm making a laptop and I'm connecting a NIC card in it, तो जो मैं NIC कार्ड बनाऊंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा कि यार जो मैक एड्रेस में इसको सेट करवा रहा हूँ, जो इसको मैं मैक एड्रेस दे रहा हूँ, दैट इज नॉट इशूड टू एनी अदर डिवाइस
in my HP company. तो मतलब HP कंपनी के अंदर अगर एक लैपटॉप का मैक एड्रेस 27C लेट से आ जाता है, अभी हम बताते हैं इसकी लेंथ विड्थ सब देखते हैं, लेकिन अगर 27C आ जाता है पहले, तो मैं डेटाबेस में चेक करूंगा कि यार 27C है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर तो मैं इशू कर दूंगा, अगर है तो आई नीड टू चेंज इट. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि माय मैक एड्रेस इज यूनिक. मैक एड्रेसेस आर ऑलवेज यूनिक. अब मैक एड्रेस जो होता है ना, मैक एड्रेस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स. चैप्टर 1 में याद है ना हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ये हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट के फॉर्म में होता है. एंड द फॉर्मेट फॉर मैक एड्रेस इज बेसिकली एन 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 एन. ये मैं आपको बता दूं एन एन का क्या मतलब है. एन एन, फिर हमारे पास डैश आता है, फिर मे बी एम एम. ये आपको ऐसी एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूँ, सही है. एम एम. अब इसमें होता ही है कि ये एन एंड एम मैंने खुद से डाले. इट्स नॉट नेसेसरी कोई एन होगा कोई एम होगा. इट इज बेसिकली अ फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में होते हैं these first six digits they basically refer out to the manufacturer's code. सही है, मैन्युफैक्चरर्स कोड. मैं आपको बाद में समझा दूं इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी आप ये समझो मैन्युफैक्चर कोड मतलब अभी आप अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस चेक करें तो इट विल बी इन दिस फॉर्मेट, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं बेसिकली 6 ग्रुप्स. क्या 6 ग्रुप्स है? 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप. तो जो पहले 3 ग्रुप्स को जब होता है ना, वो होता है आपके मैन्युफैक्चरर का कोड, एंड जो लास्ट 3 ग्रुप्स होते हैं दोज आर बेसिकली योर डिवाइस कोड. अब इसका मतलब ये हुआ कि लाइक अगर एप्पल लेट्स से फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे कोई एग्जांपल भी गिवन था, मुझे याद है बुक के अंदर. हाँ, तो ये देखो इन्होंने बोला है कि 001CB3 दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चरर कोड फॉर एप्पल. 001CB3. एंड इसके बाद लेट्स से यहाँ पे हम कोई और नंबर डाल देते हैं 7C2A9D. सही है. अब ये हुआ क्या, दिस इज अ टाइप ऑफ मैक एड्रेस के जब आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस अभी लेट्स से कोई चेक करता है, इट्स नॉट आपने मैक एड्रेस किसी के साथ बाय द वे शेयर नहीं करना होता है जस्ट फॉर अ पॉइंट, बट लेट्स से अगर आप अपना मैक एड्रेस निकालते हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर होता है. सो इसमें जो आपके ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट 3 पॉइंट्स, दिस बेसिकली इंडिकेट कि यार दिस इज एन एप्पल डिवाइस. सही है, दिस इज एन एप्पल डिवाइस. व्हेन इट्स एन एप्पल डिवाइस इसका खाता ही होगा. द गुड पॉइंट इज कि all the Apple devices, like if I have an iPhone, if I have a MacBook, if I have let's say Apple TV के जो वो वाला चीज होते हैं, if I have maybe an iMac या maybe whatever Apple device, Apple Watch, कोई भी Apple की चीज मेरे पास होगी ना यार, दैट इज समथिंग जो कि आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हो, लेकिन मैक एड्रेस इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट बी शेयरिंग. नॉट आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन हैक, बट इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल टाइप ऑफ स्टफ, तो ना ही शेयर करो तो बेहतर है. सो नाउ all Apple devices are going to start off with 001CB3. उनके मैक एड्रेस में ये जो पहले 3 ग्रुप्स हैं, they basically identify कि यार ये मैन्युफैक्चर कौन है. उसके बाद हमारे पास जो ये 7C2A9D है ना, दिस इज बेसिकली द कोड फॉर माय डिवाइस. सो इफ आई लेट्स से हैव एन आईफोन, तो मेरे आईफोन का अगर ये कोड आ जाता है, लेट्स से दिस इज नॉट बाय द वे द एग्जैक्ट वन, लेकिन अगर मेरे आईफोन का यही आ जाता है, दिस लेट्स से इट यूनिकली आइडेंटिफाइज माय आईफोन, तो अगर दुनिया में मे बी मिलियंस ऑफ आईफोन्स है ना, तो हर मिलियन आईफोन के पहले 6 डिजिट्स जो होंगे या पहले 3 ग्रुप्स, दे आर गोइंग टू बी स्टेइंग द सेम. व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट 3 ग्रुप्स आर ओनली इंडिकेटिंग द मैन्युफैक्चरर. उसके बाद हमारे पास आते डिवाइस आईडी वेयर बेसिकली डिफरेंसेस कम अप. यार यू आर करेक्ट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैक एड्रेस को लोग खुद चेंज कर भी सकते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 001CB3 के ऊपर ही आप बोले कि इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ फेक आईफोन या समथिंग. हाँ, इट कैन बी अ मेजर, लेकिन इसके अंदर एक वो भी होता है कि इट कैन बी डिफर टू. सही है, अभी हम वो पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैक एड्रेस को चेंज करना चाहिए एंड क्यों. लेकिन अब इसमें मेन बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में वो बोल सकता है कि यार मैक एड्रेस के क्या फॉर्मेट होता है, तो यू शुड नो कि यार मैक एड्रेस अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो उसमें जो पहले 3 ग्रुप है एन 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 एन, ये मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था कि यार जो ये पहले 3 के ग्रुप्स है ना, ये जो एन एन वाले डिजिट है, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग योर मैन्युफैक्चरर कोड. व्हाट इज मैन्युफैक्चरर कोड? इट इज बेसिकली, हाँ एग्जैक्टली, एवरी कंपनी हैज इट्स यूनिक मैक एड्रेस. क्यों? इट हैज ए यूनिक इन कॉन्टेक्स्ट के जो उनका मैन्युफैक्चरर कोड है वो तो डिफरेंट होगा. लाइक इफ आई एम हैविंग एप्पल, तो सारे एप्पल के तो चलो एप्पल को इंडिकेट करेगा, लेकिन एचपी डिवाइस के मैन्युफैक्चरर कोड में कोई एप्पल क्यों डालेगा? इट डजंट मेक सेंस. आप अपने कंपेटिटर का नाम तो नहीं डालोगे. इट्स जस्ट लाइक कि मैं बोलूं यार आप सब लोग का इंशाल्लाह कल रिजल्ट है एंड मैं बोलूं
आप सब लोग माशाल्लाह ए स्टार्स ले आते हो एंड कोई और बंदा जाके बोलता है स्टोरीज पे डाल रहे होते गाइस आई गॉट ए स्टार्स, सही है। तो अब ये तो वो वाली बात है कि इस तरह कौन करेगा, यू गाइस गॉट द रिजल्ट, यू गाइस डिजर्व टू शेयर इट, राइट, व्हाई विल समवन एल्स टेक द क्रेडिट फॉर इट। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में एवरी मैन्युफैक्चरर व्हेन क्रिएटिंग अ मैक एड्रेस मेक श्योर्स कि यार उनके स्पेसिफिक चीज वो यूनिक हो। सो जो आपके पहले 6 डिजिट्स है वो तो मैन्युफैक्चरर कोड में आ जाते हैं, जो आखिरी 6 डिजिट्स होते हैं दिस इज बेसिकली यार स्कूल वाली बात, चलो यार स्कूल इज अ स्पेशल केस, ये स्कूल इज अ स्पेशल केस। हाँ बिल्कुल, द फर्स्ट 6 डिजिट्स इज गोना आइडेंटिफाई कि यार ये डिवाइस किस कंपनी की है, किस कंपनी की ये डिवाइस है। वेयर एज द लास्ट 6 डिजिट्स इज बेसिकली गोइंग टू इंडिकेट कि यार ये डिवाइस का कोड क्या है, ये डिवाइस का नंबर क्या है। दिस स्पेसिफिक 6 डिजिट्स आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द होल एप्पल कंपनी। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 001CP3, इसका मतलब लग गया कि यार एप्पल की कोई डिवाइस है। उसके अंदर 7C2A90 ये है मेरे उसके व्हाट डू वी कॉल इट डिवाइस की आईडी। अब इट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इफ आई हैव एन अदर मैक एड्रेस लाइक A239 4C एंड आगे मैं फिर 7C2A90 डाल दूं, तो अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि यार ये तो वही, अगर लेट्स से दिस इज मार्सेस लैपटॉप्स के मैक एड्रेस एंड ये तो फिर से मार्स के लैपटॉप का ही मैक एड्रेस आ गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। बट द थिंग इज कि आपने यहाँ पे ये देखना होगा कि वेदर the company is same or not. So if we look at this, it can be seen that this is an Apple device, whereas this is not an Apple device. So if it's not an Apple device, तो हमारे पास uniqueness आ गई, right? कि हमारे पास एक maybe this might have been a MacBook address, but this might be maybe let's say XYZ company का same device. So XYZ company might have this address for maybe a phone. तो it's not necessary कि आपके phone के specific code बिल्कुल same रहेगा. It is important कि आपके company plus डिवाइस आईडी जो है ना वो यूनिक होगी। तो अगर आपके एप्पल की जो डिवाइस आईडी है दैट माइट बी सिमिलर फॉर लेट्स से अगर सैमसंग के लैपटॉप के मैं डिवाइस आईडी देख लूं इट माइट बी सेम, क्योंकि इस तरह बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं। तो किस तरीके से यूनिकनेस आती है गाइस, आपने कभी सोच लो तो उसका यही होता है कि इट बिकम्स यूनिक बिकॉज हम कंपनी को शुरू में वो कर लेते हैं, फिर कंपनी के बाद डिवाइस आईडी में हमारे पास इतने नंबर्स आ जाते हैं, तो उस खाते की वजह से बेसिकली इट बिकम्स यूनिक। सो आपको ये बात समझ आई या नहीं कि मैक एड्रेस का क्या बेसिक वो होता है, टाइप ऑफ क्या कहते हैं या चलो गुड। अब इसमें एक और चीज है, हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास मैक एड्रेस है ना इनके 2 टाइप्स आते हैं। ओके सो एक सेकंड रुको, मैं ये थोड़ा ना समराइज आप लोग के लिए कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ आ जाए बेहतर तरीके से। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस आते हैं, सही है। एक को हम बोलते हैं, ये जो हम मैक एड्रेस अभी तक पढ़ा ये तो एक जनरल है ना, एक ब्रॉड वो है which is basically unique identifier assigned to your network device, like कंप्यूटर का जो NIC है या जो लोग इसको वाईफाई कार्ड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अल्लाह खैर करेगा सैफुल्लाह, डोंट वरी, रिजल्ट सबका बहुत अच्छा आएगा एंड इंशाल्लाह आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, डू लेट मी नो। Inshallah, everyone is going to get those A stars, inshallah. And if I, let's say, I was awake by the time thresholds were being shared, तो मैं खुद आप लोगों को ना सारे O2 के guys, you guys are going to appear in O2 के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो मैं आप लोग के साथ पाकिस्तान स्टडीज वगैरह वगैरह का वो आ जाए यार इंशाल्लाह। आप क्यों टेंशन लेते हो, यू आर गोना बी सेंडिंग मी द मैसेज सबसे पहले। रेहान आप टेंशन ना लो, खुशी का इजहार होगा कि A stars है सर, A stars इंशाल्लाह, डोंट वरी मैन, एवरीथिंग इज गोना गो सुपर डुपर वेल इंशाल्लाह। सो नाउ बैक टू वेयर वी वर, किधर गए आप, सही है। उर्दू पाकिस्तान स्टडी इस्लामिया दिन के मैं अगर सुबह उठा हुआ उस टाइम तक, क्योंकि माय ब्रदर आल्सो हैज हिज रिजल्ट, तो अल्लाह खैर करे उसका भी अच्छा है इंशाल्लाह। सो फिर मैं देख लूंगा, मैं आप लोग को साथ शेयर कर लूंगा, सही है। सो नाउ वेयर वी वर, हमने मैक एड्रेस को ओवरऑल तो पढ़ लिया। अब मैक एड्रेस के अंदर भी एक कहानी आती है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस। एक को बोला जाता है UAA। UAA, अब UAA किसे बोलते हैं? UAA इज बेसिकली यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस का क्या मतलब है। तो अगर आप ये वर्ड यूनिवर्सल को ही देख लें तो आपको आइडिया इतना हो जाएगा कि यार इट इज दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्रेस जिसको डिफॉल्ट कंपनी ने सेट किया हो एंड इट इज बेसिकली सेट बाय द डिवाइस मैन्युफैक्चरर एंड मतलब इट इज समथिंग जो कि चेंज नहीं होता। अभी आप लोग के पास ये जितने फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवीज है, स्मार्ट टीवीज बाय द वे, सही है, जिनके अंदर वाईफाई का होता है,
Have you guys ever changed your MAC address? No, right? आप लोग नहीं change करते. So this type of MAC address जिसको usually user change नहीं करता, the one which is already just set up by the company's manufacturer वगैरह वगैरह, this is known as your universal administered address. So it is the default factory set address by the company. सबसे पहला point, default factory set क्या बोलेंगे, मैक एड्रेस, डिफॉल्ट फैक्ट्री सेट एड्रेस सेट बाय द कंपनी, एड्रेस सेट बाय द कंपनी फिर उसके बगैर आपको ये बात ये पता होनी चाहिए कि दिस इज द वन जो कि कंपनी सेट करता है. इट इज बेसिकली द वन विच इज देयर set in the hardware by the manufacturer. सही है. So इसको आप इस by when will you tell us the marks for, oh yes, the test इंशाल्लाह आज मैं चेक कर लूंगा ना, तो फिर आप लोग को मैं बता दूंगा कल परसों, वो आपको मेल आ जाएगी द मोमेंट आई मार्क इट. सही. लेकिन आई टोल्ड यू आई वाज नॉट अवेलेबल ओवर द वीकेंड, इसलिए चेक नहीं किया. तो आज इंशाल्लाह हो जाएगा सारा, आज कल के अंदर, बट आई विल गेट टू इट टुडे टुनाइट इंशाल्लाह. सो नाउ उसके बगैर ये कि ये वाला जो एड्रेस होता है ना, ये सेट कहाँ पे होता है? इट इज बेसिकली सेट इनटू द डिवाइस हार्डवेयर. तो जो हम एनआईसी की बात करें उसके अंदर जो आपका एड्रेस सेट होता है ना, वो आपका यूएए होता है. सो इट इज सेट इनटू द डिवाइस हार्डवेयर. बाय डिवाइस हार्डवेयर आई मीन एनआईसी, जो हमने पहले पढ़ा है. सही है, एनआईसी. फिर इसका हमें एक और थर्ड पॉइंट ये कि इट इज रेयरली चेंज. मतलब आप अपने दोस्तों में पूछ लें, अपने घर में पूछ लें, कभी भी किसी ने ना अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं किया होगा. मेजॉरिटी को तो चलो पता ही नहीं होगा व्हाट्स मैक एड्रेस, लेकिन इवन दो सीएस किडोस, दे माइट हैव आल्सो नेवर चेंज्ड their MAC address. Why? Because it is something जो कि आपकी कंपनी ने सेट कर दी है पहले से, and it is already burnt into your device hardware and it is rarely changed by the user. So ये तीन आपके इसके ना, यार वो तो लिखा तो होता है. इट इज नॉट लाइक व्हाट्स कॉस्टली, लाइक इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, चेंजिंग द एड्रेस. या फिर देखो अब सैफुल्लाह आपके लैपटॉप में लिखा तो होगा. इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ शेयर नहीं होता. मेरे लैपटॉप में डेफिनेटली आई डू हैव टाइप ऑफ माई यूनिक नेम. अब बिल्कुल अहमद, मैक एड्रेस इज लाइक योर नेम काइंड ऑफ, बिल्कुल सही बोल रहे हो. सो अब देखो आप अपना नाम तो देख सकते हो ना. इट्स लाइक यू गो टू सेटिंग्स, यू गो टू दैट जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड यू सी दैट योर डिवाइस हैज दिस स्पेसिफिक मैक एड्रेस. लेकिन यू कैन ओनली लुक एट इट, यू कैंट चेंज इट. Why can you not change it? वो अभी हम देखते हैं कि अगर चेंज करने के क्या मसले हैं. लेकिन दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्रेस जो कि कंपनी की तरफ से आप लैपटॉप खोलते हो, नो इट इज नॉट टाइप ऑफ कॉस्टली. लेकिन देयर इज अ बिग इशू. मैं आपको बताता हूँ इशू क्या आता है अगर आप मैक एड्रेस चेंज करते हो. लेकिन अब आप अपने मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते. एंड ये जो हमारे लैपटॉप्स के अंदर जो मैक एड्रेस है, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज इट, राइट. सो इट बेसिकली कम्स अंडर द यूएए वाले मैक एड्रेस टाइप. सही. अब यूएए तो हमने कर लिए. यूएए के बगैर हमारे पास एक दूसरा मैक एड्रेस भी आता है. It is known as LAA. इधर लिख लेता हूं. Let me change the color. LAA. अब ऊपर वाले में U था. U was universally. जो हमारा L या IP and MAC are different, अभी हम डिस्कस करते हैं. L जो होता है, L basically goes for locally administered address. So अब अगर मैं लोकल वाले वर्ड को, नहीं नॉट अ लूजर, इट्स लोकल नॉट लूजर. ओके. सो लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस, अगर आप लोकल का वर्ड ही सुन लो तो आपके जहन में आ जाएगा कि यार लोकल से आई मीन इट्स नॉट समथिंग जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर माइट बी सेम हो. सो इट्स लाइक अ कस्टम मैक एड्रेस व्हिच हैज बीन असाइन्ड बाय द यूजर. एंड इफ आई लेट्स से असाइन माय लैपटॉप LAA, तो उसके अंदर ये हो जाएगा जो मेरे UAA है उसको ये रिप्लेस कर देगा. लेकिन इट इज यूजफुल इन सम स्पेसिफिक केसेस, लेकिन इट इज वेरी रिस्की. व्हाई? अब जो रेयान आपका क्वेश्चन था कि सर कैन वी चेंज मैक एड्रेस, तो इसका जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि आपको पता नहीं है कि दुनिया में यूनिक एड्रेस कौन सा है. लेट्स से अगर अभी रेयान का एड्रेस ये वाला हो 7C2A9D, एंड क्योंकि उसको 9D नंबर पसंद नहीं आया एंड ही इज लाइक आई वांट टू चेंज इट टू 7C2A मे बी 98. If he wants to change it to 98, 98 might be the number of marks he gets in some maybe test out of 100. So he loves the word and number 98 a lot. So अब उसको 98 में कर देता है so that he can tell people his achievement, right? लेकिन the issue is कि यार जो आपका ये वाला कोड है ना, this is basically the MAC address for Ahmed's PC. अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये होगा कि अगर अहमद PC और रियांस का लैपटॉप एक नेटवर्क पे कनेक्ट होता है
तो आपका राउटर समझ नहीं सकता कि यार वेदर इट इज अहमद ट्राइंग टू कनेक्ट या वेदर इज इट रेयान ट्राइंग टू गेट एक्सेस। एंड अगर कोई डेटा आप डाउनलोड करते हैं तो डेटा आपके कंप्यूटर के आने के लिए उनको भी मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। इफ योर मैक एड्रेस इज सेम तो शायद आपका डेटा जो रेयान के पीसी में आना चाहिए था वो अहमद के पीसी में जा रहा है, जो अहमद भेजना चाह रहा है वो रेयान के पीसी से जा रहा है। तो इस तरह के मसले होते हैं। व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट नो कि यूनिक एड्रेस कौन सा है। That is why it's not costly to change the address, but it is never recommended, because if you set an address which is not unique, तो उस केस में बहुत ज्यादा मसले हो सकते हैं। But then you might be thinking, sir हमारे पास LAA की जरूरत क्या है? LAA is what? It is that custom type set by the user, or I can say custom MAC address. एक सेकंड रेयान में सुनता हूँ custom MAC address. So Rayan is saying, sir, LLA can be referred to the laptop that no. Even if a laptop is manufactured in Pakistan, देखो आपके जो लैपटॉप्स पाकिस्तान के अंदर भी बनते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक लैपटॉप डेल की तरफ से होता है तो उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स डेल के होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने ये देखना है कि जो आपके एनआईसी होते हैं, एनआईसी के अंदर जो आपका मैक एड्रेस होता है एनआईसी का, दैट इज यूएए ने ये इंश्योर करना ही होता है कि यार आपके पूरी दुनिया के अंदर आपका कोड यूनिक रहे। क्यों? लाइक लेट्स से इफ आई एम बाइंग अ एनआईसी मेड बाय एप्पल, if my NIC is made by Apple, तो Apple ने इंश्योर करना है कि Apple ने दुनिया में जितने भी डिवाइसेस किए ना, उन सारे डिवाइसेस से जो इस NIC का कोड है, which is basically this, it has to be unique. LAA basically means कि यार if I don't like the code or there is some sort of issue with this code which does not allow me to do something and I want to change it, I want to change the specific code number, तो मैं LAA को ले आता हूँ over UAA. Like I like personally myself, I on my own basically change the address. When I change the address on my own, what happens is कि मेरी UAA basically when I change it, this UAA type of becomes a LAA because I locally, not universally, I locally administered address by setting it something जो कि मुझ मेरे ख्याल में से कि locally ये unique होगा, लेकिन because I did it on my own and I'm not sure कि उसके बगैर बाहर दुनिया में कॉपी होगा या कुछ, तो इसमें ये काफी मसले आ सकते हैं। हम पढ़ते हैं, but UAA means that our code shall be unique. Yes, type of, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। LAA means that it will be only unique locally, and LAA का ये मतलब है LLA में बड़े मसले होते हैं, क्योंकि आपके मसले ये हो जाते हैं कि यार आपको लग रहा है कि इट इज यूनिक लेकिन इट माइट नॉट बी यूनिक। UAA का ये फायदा है क्योंकि इट्स यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड, तो उसमें बड़ा फायदा हो सकता है कि शायद आपके यूनिक हो ओवर द होल ग्लोब। लेकिन इसका हमें एक पता लग गया कि इट इज यूजर असाइंड, सही है। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि यार इफ आई सेट अप LAA, इट इज गोना ओवरराइड योर UAA। मतलब अगर हमारे कंप्यूटर को पहले UAA नंबर इशूड था मैक एड्रेस का, बट देन आई कम आउट ऑफ नोवेयर एंड आई एम लाइक गिविंग इट LAA वाला मैक एड्रेस एंड आई एम चेंजिंग इट ऑन माय ओन। तो द इशू इज कि जब मैं LAA को इंट्रोड्यूस करता हूँ, द मोमेंट आई डू दैट, मेरे UAA इज नो लॉन्गर एक्टिव। तो मैं जब भी किसी चीज के साथ कनेक्ट करूंगा तो इट्स गोना बी डन यूजिंग माय LAA। लेकिन क्योंकि इट्स नॉट यूनिक, हाई रिस्क of it not being unique, तो जब ये यूनिक नहीं होगा तो इसमें काफी मसले हो सकते हैं। तो इफ आई आस्क यू गाइस शुड यू बी गोइंग विद LAA और UAA, तो डेफिनेटली एवरीवन वुड बी लाइक क्यों मैं LAA चूज करूंगा जब इसमें इतने रोले भी बन सकते हैं, राइट? दैट शुड बी इन योर माइंड, राइट? बट नाउ द थिंग इज you are required LAA at some points. Why? Maybe there are, why should I, बल्कि हम इस तरह लिख लेते हैं। हाँ देखो, अब सैफुल्ला भी यही बोला कि UAA नहीं चूज करता, but there are some reasons to go with LAA। अब वो रीजंस क्या आते हैं? उनमें सबसे पहले हमारे पास रीजन यही आता है कि यार मे बी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो विच डज नॉट अलाउ अ स्पेसिफिक मैक एड्रेस का फॉर्मेट। मे बी अगर मैं बोलूं कि यार अगर पहले दो लेटर्स मैक एड्रेस के AA से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं एक सॉफ्टवेयर बना दूं विच इज लाइक AA वाले डिवाइसेस के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। किस तरह? मे बी if for instance Apple is an American company and I'm using this Chinese software which does not allow Apple to access my software, सही है, तो उस कहानी के अंदर हो ये सकता है कि I can change my MAC address from something कि वो Apple के AA से स्टार्ट ना और मे बी आई मेक इट BA। तो वो जो चीज हमने BA के अंदर कर दी है ना, तो अब इट इज नॉट दैट Apple वाले restricted to number and I can now run the app। तो इसका जो एक रीजन why I can be using LAA is कि I can main bypass
bypass set software requirements. Software requirements. And इनकी क्या software requirements होती है? They have like a strict, type of, what do we call it, MAC address format. So strict MAC address. यार उनका पेपर भी आसान था, by the way. So just don't go over the threshold. Say it's a strict MAC address format. So अगर आपकी किसी कंपनी ने इस तरह से मैक एड्रेस फॉर्मेट रखा हुआ है कि यार स्टार्ट में ए नहीं होना चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज इट, माय यूएए को मैं चेंज कर देता हूँ बाय सेटिंग अप एलएए व्हिच बाय मेकिंग इट मे बी बीए. नाउ व्हेन आई एम डू इट बीए, द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है एंड आई कैन लाइक लिटरली रन इट अप. एंड जब ये होता है तो आई एम लाइक इन अ वे बेटर प्लेस, राइट. उसके बगैर एक और भी हमारे पास पॉइंट आता है विच इज बेसिकली, अगर मेरे राउटर के ऊपर कोई एड्रेस लगा हुआ है, लेट्स से गाइस बैक टू द क्लास क्विकली. सो the second reason why I should be basically using a LAA is that it helps in bypassing router or firewall बाईपासिंग राउटर एंड फायरवॉल के वो क्या कहते हैं, फिल्टर्स या. सो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि पीटीसीएल वाले एक सेटिंग कर ले जिसके अंदर वो बोल दे कि यार एनी मैक एड्रेस दैट इज स्टार्टिंग विद द नंबर एंड उसके बाद कोई नहीं हेक्साडेसिमल हो, लेकिन पहले दो जो डिजिट्स है वो नंबर हो, तो उसको आपने इंटरनेट एक्सेस नहीं देना. So if this is a rule and a law applied throughout Pakistan, so any device जो कि बाहर से आती है जिसके पहले दो digits are numerical, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज कि यूएए तो मेरी सेट है, इट इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर, आई कैन नॉट चेंज इट. बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो विद एलएए, चेंज दिस 27 टू समथिंग जो कि पाकिस्तानी कोऑर्डिनेट्स में सही होता है. मे बी आई मेक इट 7A and फिर उसके बाद BA आ जाए. So what I did was I changed those two numbers into something which is according to the laws of the country. And when I do this, I can basically bypass any sort of filtering software or filtering rules set up by your router या फिर any sort of firewall. Now the example which Ahmed gave, North Korea वाला, अब North Korea के अंदर भी इस तरह के routers को filter किया जाता है. It does not allow any sort of stuff. Like सही इसका हमें वैसे ज्यादा पता नहीं है, I'm not sure. लेकिन if there is any sort of such restriction जिसके अंदर specific device नहीं connect की जा सकती, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि यू कैन बाईपास इट बाय setting up a LAA rather than the UAA which is being set up by the company. तो इसका एक ये फायदा भी आपके पास आ जाता है कि यार आप इस तरह के खातों को ना बाईपास कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक इसके अंदर तीसरी बात ये आ सकती है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैंने नेटवर्क के ऊपर कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस डालनी है, एज इन कि मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अहमद और हम सारे स्टूडेंट्स लेट्स से एक बहुत सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, सही है, which is very confidential and top secret file, and I don't want anybody without us six maybe having any chance of getting access to it. अब हम digitally वो करें connect on a router on a network system, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या अगर हम 5-6 लोग सारे के सारे लोग ना अपने मैक एड्रेसेस को एक स्पेसिफिक कोड के साथ वो कर लें, 7A 9B 6C. तो अब ये हमने सबसे यूनिक कर दिया. जब मैं यूनिक कर दूं 7A 9B 6C, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम इसको कोई यूनिक सा वो कर लेते हैं जिसके अंदर साइफर टाइप का कर लो, या फिर देखो UAA तो ऐसा है कि नो वी वांट टू यूजिंग UAA तो अगर हमने यूज किया तो फिर तो सारों का UAA होगा, मतलब उन्हीं में यूनिक आ जाएगा, राइट. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैंने कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ चीज खोलनी है, रिस्ट्रिक्टेड, जैसे इफ पाकिस्तान बैन्स 2 letters एट द स्टार्ट, इफ पाकिस्तान बैन्स AA, तो हमारे सारे जो डिवाइसेस है पाकिस्तान के अंदर they will be something like starting with BA or some number or something like that. So if we set up a network और उसके ऊपर हम ये restriction लगा दे कि यार सिर्फ 7A के साथ जो स्टार्ट होंगे उनको अलाउ करने, बाकी सबको रिजेक्ट कर दे, एंड लेट्स से हम सारे अपने डिवाइसेस के मैक एड्रेस को 7A के साथ चेंज कर ले, तो अगर हम एक नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं तो इट विल बी ओनली द 5 of us, राइट, except for someone who might have 7A luckily. उसके बगैर जितने भी हमारा वो नेटवर्क हो, it gets restricted. अगर किसी के पास पासवर्ड हो भी तो वो फिर भी नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो वी आर गोना सेट अप अ LAA जिसके अंदर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि यार ओनली अलाउ दिस स्पेसिफिक मैक एड्रेस वाले वो कोड को इनटू द नेटवर्क. वो मैक एड्रेस जो होगा वो हम आपस में वो कर लेंगे कि यार पहले 2 लेटर 7A होंगे, इसके बगैर कोई आ ही नहीं सकता. तो व्हाट जस्ट हैपेंड, आई ट्राइड
to make it restricted. Now if I'm at a home where I have the internet password with almost 100 people, let's say for instance, so yeah, so even if the network password is with 100 people, if I change it and I set this restriction, unke paas password ho sab kuch ho, they cannot join the network. Why? Because I have a set requirement कि 7A से ना हो तो नहीं होगा, and then we can do work on our super top secret work. So the point up here is, the important point is कि आपको पता होना चाहिए कि एक third reason for why people usually go with LAA is that it avoids network restriction, या फिर it can emulate an unrestricted MAC address. सही है, maybe if I want to make sure कि कोई unique सा वो हो जाए वगैरह वगैरह, and we won't be हैक नहीं हो सकता वाली बात, देखो अहमद सुहेल ऐसा है ना कि हैक वाली बात अलग होती है। मैं ये बोलूं कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, लाइक अभी मैं ये बोल दूं ना कि आपके वाईफाई के ऊपर मैं जाके मैं ये सेटिंग लगवा दूं कि अगर आपके फोन का भी कोड मैक एट स्टार्ट हो रहा है AB के साथ, तो मैं उसके अंदर जाके सेटिंग्स में ये सेट कर लूं कि AB को चेंज करके आपका एनी कोड विच इज स्टार्टिंग विद AB उसको आपने अलाउ नहीं करना। तो अगर आपको पासवर्ड भी पता है, आपके वाईफाई सेक्शन में आपके राउटर का नाम भी आ रहा है, डिस्पाइट ऑल दैट आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट लाइक आप हैक नहीं हो सकता, इट्स जस्ट लाइक कि आप उस नेटवर्क के अंदर कनेक्शन नहीं जा सकते। कभी कभार होते नहीं, आप वाईफाई को कनेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं अनएबल टू कनेक्ट, तो वो अनएबल टू कनेक्ट वाला एरर आपको आने लग जाएगा क्योंकि आपके राउटर बोलेगा ओ इस मैक एड्रेस वाला इज नॉट अलाउड, सो बैक बैक बाय 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 बाय, so we won't even be able to use anyone else's internet. No, देखो it depends. If your IP address, the MAC address which we set, the LAA, if it's unique to, you're good to go. One, if you're done with this super top secret work, उसके बाद you can remove this LAA and हम बाद में फिर से अपनी UAA पे आ जाते हैं, and then we can use anybody else's internet. Okay, so NASA's Wi-Fi, now NASA might be having some sort of, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि NASA का भी इस तरह का यूनिक खाता हो सकता है, समझ रहे? So इसका जो थर्ड पॉइंट है, लेट मी सी कि इन्होंने बुक के अंदर भी कोई लिखे टू गेट पास सर्टेन, हाँ, अब बुक के अंदर इसकी कहानी थोड़ी इससे लिखी हुई है कि यू कैन यूज मैक एड्रेस टू गेट पास सर्टेन टाइप ऑफ नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस हो गए, सो मैक एड्रेस वगैरह। अच्छा, सो बुक के अंदर ये पॉइंट वैसे है ही नहीं, तो बस छोड़ ही दो, हम इसको करते ही नहीं है। लेकिन अगर बुक वाले पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं तो वही ऊपर वाले पॉइंट को रिवर्ट करके हम लिखेंगे। बुक के अंदर इट इज सेइंग कि इफ यू वांट टू गेट पास सर्टेन टाइप ऑफ नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन, लिख लेते हैं टू गेट पास सर्टेन टाइप ऑफ नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि यार अगर पाकिस्तान ये बैन कर ले कि AA वाले कोई नहीं होंगे, एंड इफ देयर इज अ लैपटॉप जिसका AA के साथ हो रहा है तो पाकिस्तान में नहीं कनेक्ट होगा PTCL के साथ, मैं क्या करूंगा, मैं उसको चेंज करके AA से BA कर दूंगा, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, एंड देन यू कैन लिटरली हैव अ गुड व्हाटएवर वी कॉल इट, मजे के काम कर सकते हैं, एंड यू कैन टाइप ऑफ यूज द इंटरनेट, यू कैन हैव कोलैबोरेशन विद ईच अदर, you can play games, you can enjoy with each other, you can watch YouTube, you can do whatever you want to do on internet, right? But if your country has some sort of restrictions and you are not meeting that criteria, so you cannot join that specific network. So if you want to go watch YouTube and enjoy games, or if you want to collaborate with people on projects and stuff like that, so if you have a laptop, तो उसको अगर आपने bypass करना है specific network restrictions को, तो आपने अपने LAA को सेटअप कर देना है rather than UAA, which is going to ensure कि आप किसी certain type of network restriction अगर आपकी कंपनी या कंट्री की तरफ से लगी हो तो उसको आप बाईपास कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 and 3 आर समवट सिमिलर, एंड पॉइंट नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने, जो आपको मैं वैसे ही कोलैबोरेशन के बाद बता रहा था उसको आप स्किप कर लें, सही है, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन द बुक, सो इवन इफ इट माइट बी ट्रू आप वो ना ही लिखे, बिकॉज whatever is there in the book आप उसके साथ जाएं, that's more better, सही है। So आपके एक पॉइंट ये हो गया bypass set software requirement, the second one is bypassing router and firewall filters, and the third one is to get past certain type of network restrictions. So it's 5:32. We started the recording a bit late, so ऐसा कर लो आप लीव कर लो, सही है। if you guys have to go, you guys can go, and मैं अभी इसके बाद क्योंकि it was at my end, I started the recording a bit late, तो I'm going to continue, मैं इस चैप्टर को अभी एंड करूंगा इसी तरह रिकॉर्डिंग की शक्ल में, and so you guys have to watch the other part of the recording, सही है। is that clear? I will be posting both of the recording इस क्लास की भी and alongside, because मैंने आज ये चैप्टर 3 खत्म ही करना है, सही है। so आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, it's just IP, और उनका IP काम कैसे करते हैं उनमें डिफरेंस, so not very long, 15-20 minutes max
मैक्सिमम इंशाल्लाह, एंड फिर उसके बाद आपका मैं वो कर लूंगा. सो ओके ग्रेट. सो आप लोग अभी जा सकते हैं, एंजॉय, एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट. एवरीवन इज गोना डू सुपर वेल, एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोस.